So students, today we are going to finish assignment number 4 and after that we are going to be left with HOTS. Today I am going to give you the printouts of the book called Marvel. See, because right now you don't know which books to buy, right? And secondly, we suggest that you buy book after maybe when August just starts, because by that time the new editions come, right? So advantage is if publisher has included last year's paper, right? For example, CET 2025, NEET 2025. So you will get that advantage. Otherwise, we will give you these questions, not an issue. The rapid fire round, the properties of cross product. The properties of cross product is also coming. Okay, properties of cross product. First of all, A bar cross B bar is AB sine theta. Please tell me right ki wrong? Wrong. Unit vector should come. Very good, very good. Thereafter, A bar cross B bar is equal to AB sine theta. If I want to write mod, then a unit vector should not come. Right? Mind you, coming DCT जो भी है ना, Friday को मेरा DCT होगा. There I am going to take questions only on dot product and cross product. That means assignment 3 and assignment 4, and whatever practice papers are based on that. Coming Sunday physics is there. Coming Sunday physics test है. उसमें सब कुछ. उसमें vectors में जितना सिखाया पहले से लेके last तक सब कुछ. Thereafter properties. Come on students, ये definition था बेटा. The first property is A bar cross B bar equal to B bar cross A bar or no? No. If no, then what should I write? Minus sign. What does this mean? Angle between A bar cross B bar and B bar cross A bar is 180 degrees. Property number 2. What is A bar cross B bar if they are perpendicular vectors? If they are perpendicular vectors, should it be A into B mod A theta is 90? Dot product में ये 0 था. Dot product में ये 0 था. A bar dot B bar was 0 if they were perpendicular vectors because it was AB cos 90. और यहाँ पे ये maximum है AB. Mind you मैंने mod लिखा हुआ है. Mind you मैंने mod लिखा हुआ है. What can you say about A bar cross B bar if they are parallel vectors? 0. What about anti-parallel vectors? 0 again, because you know that sine of theta and sine of 180 minus theta are same. Sine of theta and sine of 180 minus theta are same. So if sine 0 is 0, sine 90 is 1, sine 180 is 0, sine 270 is minus 1, sine 360 is 0. उसके बाद में self cross product. What was A bar cross A bar? वेक्टर का साइन रखूं कि नहीं 0 के ऊपर? नो, क्योंकि मॉड लिखा है. अगर मॉड नहीं लिखूं तो नल वेक्टर. Yes or no? If A bar cross A bar is 0, what can you say about I bar cross I bar? 0. J bar cross J bar? 0. K bar cross K bar? 0. अगर मुझे खाली 0 लिखना है, then can I say mod? अगर मुझे खाली 0 लिखना है, then can I say mod? Thereafter, what will be IJK rule? If this is reference circle such that this is I and this is J and this is K, then the rule says that if you go anti-clockwise, you should get plus answer, and if you go clockwise, you should get minus answer. Point number 1. Point number 2, दो की मारामारी में तीसरा आंसर. Yes or no? Point number 2, दो की मारामारी में तीसरा आंसर. In the sense, what is I bar cross J bar? K bar. But what is J bar cross I bar? Minus K bar. What is J bar cross K bar? And what is K bar cross I bar? So this is I bar and this is J bar. But if I write ulta, K bar cross J bar, this is minus I bar. And if I write I bar cross K bar, then this is minus J bar. Thereafter we said that in dot product, A bar dot B bar is AB cos theta if theta is given, and A bar dot B bar is AX BX plus AY BY plus AZ BZ if theta is not given. So likewise here, if theta is not given, then what is A bar cross B bar? Is it determinant? Is it determinant? Is it going to be I, J, K? पहले A लिखा मतलब A, बाद में B लिखा मतलब B. Yes or no? और ये मेरा आंसर स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा? मेरा फाइनल आंसर स्केलर आएगा कि वेक्टर? वेक्टर आएगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स शुड बी
vector. Yes or no? Very, very, very important now. Very, very, very important now. What is area of a parallelogram using knowledge of vectors? Is it A bar cross B bar mod, or else is it half of diagonal 1 cross diagonal 2 mod? राइट इसमें diagonal 1 cross diagonal 2 को हम लोग A bar cross B bar भी लिख सकते हैं, because they might say A bar and B bar are sides of a parallelogram. They might say A bar and B bar are diagonals of a parallelogram. So on the basis of that, what is area of triangle? बेटा मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, चलेगा? A, is it half of area of parallelogram? Is it half of area of parallelogram? So is it half of both of above, both of formula number 9? चलेगा ये लिखा तो? Yes or no? Half of both of formula number 9. यहां तक किया था. अब बेटा एकदम ध्यान से सुनो, because now I'm writing 3 formula on the board. One formula will be proved in the chapter circular motion, going to be taken by me. Other 2 formula are going to be improved in the chapter rotational motion, going to be taken by my colleague. Circular motion में और rotational motion में फर्क है. Circular motion का मतलब होता है ये. Circular motion का मतलब होता है ये particle है, my finger tip, और ये particle ऐसे जा रहा है. ये particle ऐसे जा रहा है. Rotational motion का मतलब होता है ये body खुद rotate हो रहा है. या तो ये body खुद rotate हो रहा है, या तो ये body खुद rotate हो रहा है. Is that clear? When you are looking at Nayan sir, right? Nayan sir is performing rotational motion. But if I am marking a dot with the help of a black pen here, and if you are looking at that dot, then that dot is performing circular motion. When you look at the fan is going to perform rotational motion. But if I mark a point with the help of a marker pen on the blade, any of the blade, right, then can I say that is performing circular motion? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर ये रोटेटिंग बॉडी है, रिंग मिल सकता है फटाफट, लेक्चर चालू हो गया, जाने से. If I am giving you circle, right, then if you think about this point, then this point will become axis of rotation. And imagine this is not circle, this is a disc. मतलब सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फैन. डिस्क में और सर्कल में फर्क है. ये सर्कल है, सर्कमफरेंस पे सिर्फ मास है, सब जगह पे मास नहीं है. दिस पोर्शन इज एयर. दैट मींस इफ आई से दिस इज अ सॉलिड बॉडी सर्कुलर इन शेप, ये बेटा डिस्क हुआ. मास सब जगह पे, एवरीवेयर मास इज देयर. यस और नो? ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक सिर्फ इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है. यस और नो? Are you getting my point? Logic समझा? That means if the body is rotating, imagine this is the point marked by me. This is the point marked by me. Let me call this as point A. Let me call this as O. Let me call this point as B. And let me call this point as C. Right? So, if this body is rotating about this axis, this one, this is called axis of rotation. अगर ये body ऐसे rotate हो रहा है, तो do you agree with me? A, B and C are performing concentric circles, because ये point मैंने अलग अलग जगह पे लिया है, right? तो इनके रेडियाई अलग अलग है. So this disc is rotating, this plate is rotating, and every body on it, every particle on it is performing circle, except who? Except O. Point O वहीं का वहीं रहता है. That means point O is called center of this circular path or rotational path. And the line which is passing through O is called axis of rotation. तो अभी बेटा इसका मैं साइड व्यू बता रहा हूँ. एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं एक ही में तीनों फॉर्मूला लेने वाला हूँ. जब आप रिंग बनाते हो, तो ये रिंग का साइड व्यू है. और जब आप डिस्क बनाते हो तो ये डिस्क का साइड व्यू है. ऐसा नहीं कि स्टाइल में ड्रॉ किया, ये नयन सर ने अपना नाम लिखा, और बाद में मैंने थोड़ा इसको स्टाइल में लिखा.
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये शेड किया है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है थिकनेस। That means if you draw side view and if you want to say you are talking about circle or ring, you should draw this diagram, side view. And if you are talking about disc, then you should draw this. इससे तो बेटा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सर्कल है कि डिस्क है, मतलब आपको बोलना पड़ेगा। और कैसे बोलोगे? सिंपल, इधर एक डॉट बना लो और इधर एरो डाल दो। That means this red dot is performing circle. This red dot is performing circle. Now check. I'm making few things over here. Please tell me first of all, who is this? This. And suppose this disc is rotating, then what can you say about this line? Axis of rotation. I'm so proud of you. This is called axis of rotation. Axis of rotation. इसमें मैं सबसे पहले एकदम सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ, सबसे सिंपल फॉर्मूला। दिस पॉइंट इज कॉल्ड से पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कल। यू ड्रॉ अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल अप टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, देन दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। अगर ये पार्टिकल सर्कल परफॉर्म कर रहा है तो इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी वेक्टर। मतलब पार्टिकल घूम के इधर आया तो ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर हुआ, पार्टिकल घूम के इधर आया तो ये लीनियर वेलोसिटी वेक्टर हुआ, एंड सो ऑन। और ये रेडियस वेक्टर हुआ। इट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर बिकॉज इट्स साइज इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर बिकॉज इट्स साइज इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सोच के बताओ बेटा, रेडियस वेक्टर इज अ वेरिएबल वेक्टर की कांस्टेंट वेक्टर? सोच के बताओ बोला तो सोच के बताना। वेरी गुड, बिकॉज डायरेक्शन चेंज होता है। जब आप इधर आओगे बेटा तो ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा, जब आप इधर आओगे तो ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा। यस और नो? नाउ आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम आल्सो सो दैट यू अंडरस्टैंड द साइड व्यू आल्सो एंड द टॉप व्यू आल्सो। दिस इज साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू, दिस इज साइड व्यू, दिस इज टॉप व्यू, राइट? टॉप व्यू में मैं आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बता पाऊंगा, तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे बताने का? इफ दिस वाज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर्व बताता हूँ, ऐसा, व्हाट डज दिस मीन? ये पार्टिकल क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ, वो भी बता देता हूँ, कि सपोज पार्टिकल इधर था पहले, ओके, पार्टिकल इधर था और मैंने ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर बनाया, राइट? सपोज पार्टिकल ए पे था, बी पे गया, तो इसने कुछ तो एंगल कवर किया। यस और नो? लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा। लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा। मतलब यहाँ पे ये पार्टिकल इधर था, इधर गया, राइट? लेट मी कॉल दिस एज ए, लेट मी कॉल दिस एज बी, लेट मी शो दिस एरो। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेट करता है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज इंडिकेट करता है। यस और नो? ए सी डब्ल्यू मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे गया, राइट? एंटी क्लॉकवाइज। लेट मी कॉल दिस एज थीटा। आप लोगों ने स्कूल में एक रिलेशन सुना है, एस इज आर थीटा, एस इज आर थीटा। थैंक यू। एस इज आर थीटा सुना है? आर्क लेंथ इज रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू एंगल। नो प्रॉब्लम। ये बेटा मैंने पेन पकड़ा और ये मैंने इसको ऐसे स्वीप किया खाली। मान लो ये चॉक स्टिक है, मान लो ये चॉक है, और मान लो ये ब्लैक बोर्ड है। तो जब आप ये चॉक को ऐसे चिपका के रखोगे और ऐसे स्वाइप करोगे, इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड स्वीपिंग ऑफ अ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड स्वीपिंग ऑफ अ वेक्टर। तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं बेटा? इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं एंगल, और इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं रेडियस, और इसको बोलते हैं एंगल, राइट? इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? एंड एक्चुअली लीनियर डिस्प्लेसमेंट शुड गो दिस वे because displacement is the shortest distance between the initial point and final point in a particular direction. अभी समझा? आपको जो भी नहीं मालूम है बिंदास बोल दो, no problem at all। मेरे लिए 2 मिनट का काम है। Because what happens is you are coming from different boards। हो सकता है SSC में है, ICSE में नहीं है। याद है डिटर्मिनेंट? मैंने बोला था डिटर्मिनेंट SSC बोर्ड में था,
लेकिन कोई बाकी बोर्ड में था ही नहीं वो, और वो भी 2x2 था। यस और नो? एस का मतलब क्या है बेटा? आर्क लेंथ, अगर आपको डिस्टेंस ढूंढना है, या तो इट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। प्लीज नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। नो, इनफैक्ट देयर आर टू टाइप्स। वन, अगर पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट स्ट्रेट लाइन में गया, देन दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। और अगर पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कर्व पे गया, कभी कभी पार्टिकल के लिए स्ट्रेट लाइन में जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं 12, 3, 6, 9, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लॉक। आप लोग सेकंड हैंड लो, सेकंड हैंड, और सेकंड हैंड के सिर्फ टिप को देखो, सिर्फ इसको देखो। ये बेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमेशा कर्व पे ही जाएगा, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में जा ही नहीं सकता है। सोचो आप 12 to 1 गए, बराबर, बाद में आप 1 to 2 गए, बाद में आप 2 to 3 गए, तो ये हमेशा कर्व पाथ पे ही जाएगा। क्यों? लेंथ ऑफ द हैंड कैन नॉट चेंज, नो। ऐसा थोड़ी होगा कि यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। नो, तो साइज ऑफ द हैंड कम होते जाएगा, राइट, और बाद में वापस बढ़ते जाएगा, फिर वापस कम होगा। साइज ऑफ द हैंड कैन नॉट चेंज। इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द टिप ऑफ दिस हैंड, टिप ऑफ द पेन, ये हमेशा कर्व पे जाएगा। So very important thing. You are hearing this for the first time in life, because students normally misunderstand. Linear means straight line. Particle is performing straight line path. No, this is called curvilinear. This is called curvilinear. So if the particle goes from point A to point B along a straight line, it is called rectilinear. Along a curve, this is called curvilinear, and together this is called linear motion. Together this is called linear motion. मुझे इसको बुलेट मारना है, तो ये रेक्टिलिनियर हुआ, राइट। अब ये माउंटेन के पीछे, मतलब मैं बॉम्ब अटैक कर रहा हूँ, दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, तो मैं बॉम्ब ऐसे फेंकूंगा। So this is curvilinear, and this path is this chapter is called projectile motion. This chapter is called projectile motion. समझा? So mind you, linear does not mean straight line. Linear does not mean straight line. Linear or translational motion means when the particle goes from one point to the other point along a straight line path, then it is called linear motion or translational motion. And if it is going along a curve, then it is called curvilinear motion. Together it is called linear motion. Together it is called linear motion. Logic समझा? So henceforth please do not misunderstand. Linear means straight line. It may be curve also. Linear means straight line, not necessary. It may be curve also. Back to this. Now here I am preparing one small chart. And this chart talks about linear quantities and angular quantities. The chart is talking about linear quantities and angular quantities. So linear, angular, and over here I am going to talk about quantities. For example, displacement, velocity, acceleration, momentum, and finally force. If it is linear, then the symbolic representations are, respectively. Linear displacement is denoted as S. And angular displacement is denoted as theta. ये स्टैंडर्ड रूल है बेटा, थ्रू आउट फिजिक्स में यूज होगा ये, तो आप इसको यू कैन मेमोराइज. Linear velocity is denoted as v and angular velocity is denoted as omega. ये ओमेगा है, w नहीं है, मतलब ये इंग्लिश एबीसीडी नहीं है, ये ग्रीक अल्फाबेट है. ग्रीक अल्फाबेट में दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा. ओके, मतलब ये ओमेगा है, इसको कभी भी ऐसे मत लिखना प्लीज, नेवर, बिकॉज दिस मीन्स वर्क.
Is that very clear? Work is a scalar, W, English alphabet. Angular velocity is omega. Next comes acceleration, A, आपको पता है, right? This is alpha. This is alpha. तो आज की बात ये याद रखने का बेटा, ये एकदम स्टैंडर्ड सिंबल्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है. Linear momentum is P. Angular momentum is L. Linear force is F. Angular force is tau. Tau. It is written like this or it is written like this. Okay, and it is pronounced as tau. It's a Greek alphabet. याद रहेगा? Linear displacement S. Angular displacement theta. Linear velocity V. Angular velocity omega. Linear acceleration A. Angular acceleration alpha. Linear force F. Angular force tau. Linear momentum P. Angular momentum. बेटा रिलेशन इज, ये याद रखना पड़ेगा, राइट? मैंने आपके नोट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कौन से चैप्टर में प्रूव होगा. V वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. कैसे आया? वेट फॉर द चैप्टर सर्कुलर मोशन. वेट फॉर द चैप्टर सर्कुलर मोशन मैं ही सिखाने वाला हूं. ओके, तो उसमें बेटा ये ऑफिशियल प्रूफ है, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना पड़ेगा. आप इसको R क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते हो. तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी? V वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, वेयर व्हाट इज R वेक्टर? रेडियस. वेरिएबल वेक्टर की कांस्टेंट वेक्टर वेरिएबल वेक्टर. व्हाट अबाउट V वेक्टर? वेरिएबल. ये सर्कल था ना बेटा, ये डिस्क का, उसका खाली सर्कमफरेंस सर्कल था. तो ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, राइट? वेट प्लीज, आई विल हैव टू शो यू दिस. रुपेश, आत्मा, मुझे वो ग्रीन वो लगेगा इरेजर स्ट्रिंग के साथ, जरा प्लीज फटाफट. सॉरी बोलो सर. ओके, राइट? Second relation is L vector is R vector cross P vector. Sequence देखो बेटा, sequence interchange हुआ. This is angular momentum, this is linear momentum, and this is R vector. This is R vector. मतलब यहाँ पे ओमेगा पहले आया, बाद में आ रहा है. इसमें R पहले आया, फिर P आया. क्यों आया? You have to wait for the chapter rotational motion, because you know that क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव. मतलब आप बोलो कि सर पहले R लिखा बाद में P लिखा, उसके बदले पहले P लिखा बाद में R लिखा, तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा. ऐसे सिमिलरली तीसरा रिलेशन इज टॉर्क वेक्टर. टॉर्क वेक्टर इज टाउ वेक्टर इज R बार क्रॉस F बार. इसमें बेटा जितने भी एंगुलर थिंग्स है, जितने भी, they are always along axis of rotation. They are always along axis of rotation, and that's why they are also called axial vectors. They are also called axial vectors. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर पार्टिकल सर्कल परफॉर्म कर रहा है, तो ओमेगा वेक्टर इधर है, एल वेक्टर इधर है, टॉर्क वेक्टर इधर है. और अगर पार्टिकल लीनियर, हम लोग लीनियर क्वांटिटीज देखेंगे, तो वी वेक्टर इधर है. अगर खाली इमेजिन करो बेटा, खाली इमेजिन करो, व्हाट कैन यू से अबाउट द इरेजर? व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज परफॉर्मिंग? बराबर. नाउ आइदर द स्ट्रिंग इज ब्रोकन or the string is released. How is the particle going? Along the tension. क्यों? या तो स्ट्रिंग टूट गया या तो स्ट्रिंग छूट गया. जब तक स्ट्रिंग टूटा नहीं था या तो छूटा नहीं था, तब तक बेटा टेंशन ये फोर्स का रोल प्ले करता था, और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. दिस पॉइंट इज फिक्स ना, चेक करो, राइट? ये बेटा है, दिस इज द वेट ऑफ द इरेजर. वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स.
because of which there is another force developed along the string, along the rope, along the cable, along the thread. My finger indicates tension force. Look at the tip of my finger, please. Is it acting along the radius towards the center? तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ध्यान से देखो, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, बराबर. अभी बेटा आप अपना फिंगर इधर रखोगे, इधर से शुरू करोगे और आपका टिप ऑफ द फिंगर इरेजर की तरफ जाना चाहिए. वेरी गुड, यस, रखो प्लीज. ये वेक्टर हुआ बेटा रेडियस वेक्टर, ये राइट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर एंड इट गोस अप टू द सर्कमफरेंस. इसका फिंगर रेडियस वेक्टर हुआ, मेरा फिंगर सेंट्रीपिटल फोर्स वेक्टर हुआ, राइट. रेडियस वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर गोस टू द सर्कमफरेंस. सेंट्रीपिटल फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सर्कमफरेंस गोस टू द सेंटर. जब तक मैंने स्ट्रिंग पकड़ा है, अगर ये स्ट्रिंग टूटता ही नहीं है, मान लो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है, मतलब या तो मान लो ये मेटल वायर है, टूटता ही नहीं है, देन दिस विल नेवर फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंशन. लेकिन अगर ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ज्यादा होगा कि ये स्ट्रिंग ये बेयर नहीं कर पा रहा है, देन इट विल फ्लाई ऑफ अलोंग द टेंशन. इसका मतलब ये हुआ it will fly off along the velocity vector. इसका मतलब ये हुआ it will fly off along the velocity vector. तो बेटा ये डायग्राम पे आ जाओ, ये डायग्राम पे आ जाओ. You mentioned tension is because of the force acted on the body by the gravity, right? By the gravity. Tension is always developed along the string and it starts from the mass या तो body and goes to the center of the path. टेंशन इज ऑलवेज डेवलप्ड अलोंग द स्ट्रिंग बेटा. अगर ये ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है, जरूरी नहीं बेटा इसमें वेट पिक्चर में ही नहीं आता है. हाँ, ये ब्लॉक ऐसा रेस्ट पे, एक स्ट्रिंग मैंने इधर बांधा और एक स्ट्रिंग मैंने इधर बांधा, तू इसको यहाँ से खींच रहा है बेटा और तू इसको यहाँ से खींच रहा है, राइट. तो टेंशन दोनों डायरेक्शन में डेवलप हुआ. तू खींच रहा है इसलिए मेरे स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ और मैं खींच रहा हूँ इसलिए तेरे स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ. मान लो ये ब्लॉक बेटा पड़ा है और हम लोग खाली स्ट्रिंग को होल्ड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है. लेकिन हम लोग खींच रहे हैं इसको, तो तुझे टेंशन फील होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भी खींच रहा हूँ, तू भी खींच रहा है, बराबर. ये बेटा पुली है, सपोज ये पुली है, और यहाँ पे एक केबल है और यहाँ पे भी एक केबल है. यहाँ पे मैंने एक मास बांधा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक मास बांधा हुआ है. दिस मास इज 100 ग्राम एंड दिस मास इज 500 ग्राम. तो बेटा इसका वेट होगा 100 g मास इनटू ग्रेविटी और इसका वेट होगा 500 g. तो इसकी वजह से टेंशन इसमें डेवलप हुआ, इसकी वजह से टेंशन इसमें डेवलप हुआ. अब ये टेंशन इसको बैलेंस करने की ट्राई करेगा, ये टेंशन इसको बैलेंस करने की ट्राई करेगा, कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ये दोनों है. मान लो बेटा ये 100 ग्राम है, एक ही बॉडी है और ये रिजिड सपोर्ट पे हैंग कर रहा है, तो ये इसका वेट है 100 g और ये इसका टेंशन है, खत्म हो गया, दे बैलेंस ही चलो. लेकिन अभी दो मासेस है, तो इसकी वजह से इसमें टेंशन डेवलप होगा और इसकी वजह से इसमें टेंशन डेवलप होगा, राइट. अब ये दोनों में डोमिनेटिंग कौन है? ये है. दैट मींस द नेट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज विल बी दिस. समझा? तो बेटा यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस. Sir, in the circular path, the tension and the centripetal force will act along the same direction. करेक्ट, वेरी गुड. इनफैक्ट ये बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर से कहीं से आता ही नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स सिस्टम के अंदर ही रहता है. कोई तो एक बंदा है जो सिस्टम के अंदर ही है, वो खुद सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है. You have asked me the most beautiful question. Very good, beta. If this is Earth and if this is Moon, Moon is revolving around the Earth or no? इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है. कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कंपलसरी है. ये बेटा नेचुरली इनबिल्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं? ये मैं और आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप है, नेचुरली अकरिंग फोर्स है. अब बेटा इसको मैंने सन कर दिया तो ये अर्थ हो सकता है. इसका मतलब रूल इज लाइटर बॉडी ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द हेवियर बॉडी. जब मैंने अर्थ और मून लिया तो उसमें लाइट कौन है? इट इज मून विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. लेकिन अभी मैंने अर्थ और सन लिया, अर्थ कॉमन रखा दोनों एग्जांपल्स में. अर्थ और सन में हैवी कौन है? मतलब अर्थ को घूमना पड़ेगा उसके आजू बाजू. समझा? तो ओवर हियर द नेचुरली अकरिंग फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स.
दूसरा मस्त एग्जांपल सुनो बेटा, अगर ये न्यूक्लियस है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था दैट वाज जाइजेंटिक एग्जांपल, सेलेस्टियल एग्जांपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉडीज इन द यूनिवर्स. अब मैं एकदम माइक्रो चिंटू एग्जांपल ले रहा हूँ. ये इलेक्ट्रॉन है, ये बंदा इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है. तो नाउ देयर इज अ नेचुरली अकरिंग electrostatic force, electrostatic force of attraction between positively charged nucleon and negatively charged electron. You know that force between electron and nucleus has to be always attractive, बराबर ना, क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है. अब बेटा ये दोनों में हैवी कौन है? ऑलवेज. अगर आप एकदम लाइटेस्ट न्यूक्लियस ले लो ना, एकदम लाइटेस्ट, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है. मास ऑफ वन प्रोटॉन is 1.0073 atomic mass unit and mass of one electron is 0.00055 atomic mass unit. Atomic mass unit सुना है बेटा? Atomic mass unit सुना है? One atomic mass unit is 1.66 into 10⁻27 kilogram. नहीं भी सुना है? चाल से, no problem. Who is heavier? Proton. So it is the electron which should revolve around the proton, and there is only one proton in the nucleus of hydrogen. There is no neutron. No problem. Still, nucleus is heavy. समझा? तो आपने बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. It is the tension which plays the role of centripetal force. ये बाहर से नहीं आता है. Back to the angular quantities. ये quantities एकदम ध्यान से समझना, because मैं अभी मेरे नेक्स्ट चैप्टर का बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रहा हूँ. मेरा नेक्स्ट चैप्टर है मोस्टली सर्कुलर मोशन या तो वर्क पावर एनर्जी, और दोनों में ये यूज होने वाला है. ओके, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन? लाइन पासिंग थ्रू all the points at rest, all the points at rest for a rotating body, for a rotating body. सोचो, अगर बेटा ये मैं डोर ओपन करूं तो इसके कौन से पॉइंट्स है जो हमेशा रेस्ट पे रहेंगे? जो हिंजेस पे है. करेक्ट. मतलब दैट लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर ना. दिस लाइन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर ये हिंजेस में यहाँ पे लगवा दो, राइट, ऊपर ऊपर, तो ये डोर ऐसे ओपन होगा. यस और नो? सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज द लाइन पासिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट रेस्ट और व्हिच आर हैविंग जीरो वेलोसिटी फॉर अ रोटेटिंग बॉडी. मान लो बेटा मैंने फैन ऑन किया, अभी फैन ऑन किया, राइट, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होगा? द रॉड, बराबर ना. अगर आप प्लेन ऑफ रोटेशन को एक्स वाई प्लेन बोलते हो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन हुआ? अगर ये फैन में यहाँ से निकाल के ये वॉल पे फिक्स कर रहा हूँ, ये वॉल पे, तो ये ऐसे जाएगा ना. तो एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, वाई जेड प्लेन ऑफ रोटेशन हुआ. ये वॉल से ये वॉल पे फिक्स करता हूँ तो ये ऐसे रोटेट होगा. फिलहाल ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो सकता है, ये ऐसे रोटेट हो सकता है. सो आउट ऑफ 3 एक्सिस 2 एक्सिस will form plane of rotation. The third axis will form axis of rotation. Logic समझा बेटा? Back here. अगर ये rotating body है, ये डायग्राम में मैं axis of rotation नहीं बता सकता. क्यों? क्योंकि या तो आपकी तरफ है या तो बोर्ड के अंदर है. तो इसमें कैसे बताते हैं फिर? इसमें बेटा ऐसे बताते हैं, ऐसे, राइट. ये है ना, ये हम लोग साइड से देख रहे हैं. तो अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर ना. अभी मैं जो दिखा रहा हूं ये ऐसा है ना. अब यही चीज मैं ऊपर से देख रहा हूं, राइट. यही चीज मैं साइड से देख रहा हूं, समझा? एंटी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस इज कॉल्ड साइड व्यू, दिस इज कॉल्ड साइड व्यू, एंड दिस इज कॉल्ड टॉप व्यू, बराबर. तो इसमें बेटा ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ये v वेक्टर, ये v वेक्टर हुआ, ये, राइट. ये v वेक्टर हुआ, ये r वेक्टर हुआ, ये. कंफर्टेबल कभी से सर एक्चुअली इंपॉर्टेंट लेक्चर. अगर अभी नहीं समझा तो पूरा साल सर दर्द करेगा. ठीक है. This is r vector.
वीडियो रिकॉर्डिंग होता ना, ये फायदा होता है। सबको डांटना भी तो एकदम प्यार से ऐसे स्माइलिंग फेस के साथ डांट, देखने वाले को पता नहीं चल रहा है बढ़ता हुआ है। वेल डन। रिकॉर्डिंग दिस इज वी एक्टर, दिस कितना क्यूट हो ना मैं, दिस इज ओमेगा। यस सर, ऐसे कौन डांटता है यार? नहीं सर, ये समझा? क्योंकि अभी मैं इसके रिलेशंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये समझा? दिस इज अ रोटेटिंग बॉडी, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फैन, दिस इज द सेम रोटेटिंग बॉडी, वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द बॉटम या तो टॉप, नो प्रॉब्लम। यस और नो? वेलोसिटी वेक्टर हमेशा किधर होता है? अच्छा, और एक बात, अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी बोलता हूँ, मैंने आगे लीनियर या तो एंगुलर वर्ड नहीं डाला, इट इज ऑलवेज टू बी अंडरस्टूड एज लीनियर। इफ आई यूज द वर्ड वेलोसिटी, देयर आर टू टाइप्स ना, linear velocity is v, angular velocity is omega. If the word is only speed, velocity, acceleration, force, तो उसको linear ही समझने का हमेशा। अगर मुझे angular velocity बोलना है तो मैं angular word यूज करूंगा, या तो डायरेक्ट आपको सिंबल दे दूंगा ओमेगा। समझा? रिलेशन का बेटा सीक्वेंस याद रखना, राइट? इधर मैं लिख रहा हूं टू बी रिमेंबर्ड, to be remembered, right? sequence wise, right? क्योंकि अगर आपने गलत सीक्वेंस लिखा तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट गलत आएगा। सीक्वेंस वाइज, राइट? इधर मैंने लिखा है वेट फॉर सर्कुलर मोशन, इधर मैं लिख रहा हूं वेट फॉर रोटेशनल मोशन। मतलब ये आया कहां से? मतलब ये आया कहां से? अभी मैं इसका सिंपल मीनिंग दे देता हूं। सिंपल मीनिंग, दिस इज आर वेक्टर, दिस इज फोर्स वेक्टर, मैं जो अप्लाई कर रहा हूं, राइट? आर बार क्रॉस एफ बार इज कॉल्ड टॉर्क बार, राइट? ध्यान से देखो, आर वही है लेकिन एफ उल्टा गया, तो ये बॉडी बेटा ऐसे रोटेट होगा। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो ये ऐसे रोटेट होगा, और अगर इसको मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये ऐसे रोटेट होगा। दैट मीन डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? रिलेशन इज टॉर्क वेक्टर is r bar cross f bar। मतलब इसमें ये बहुत जरूरी है। Will you please come out? इसमें r also is very very important, करेक्ट? अगर बेटा मैंने यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई किया यहाँ पे, तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट होगा, क्योंकि r वेक्टर लाइक हाईएस्ट है। फोर्स में वही अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज 5 न्यूटन, लेकिन ये मैं यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका टर्निंग इफेक्ट पुअर हो गया। मतलब इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू ओपन द डोर, राइट? यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट और भी कम हो गया। दिस इज द इजीएस्ट। Yes sir, this is the easiest because R bar is highest. Logic समझा? Thank you so much. आप कभी भी देखना, जब आप डोर ओपन करते हो, है ना, तो आप डोर ओपन करते हो हमेशा हैंडल को फोर्स अप्लाई करते हो, और आपका हैंडल हमेशा हिंजेस से दूर होता है। Can we rotate the camera please? Listen. You have to rotate the camera so that the door is covered. Then you can get back the board. हाँ, please एकदम ध्यान से। हाँ, ये हैंडल घुमाओ, एक मिनट हैंडल, हाँ सिर्फ हैंडल, खड़ी हो जा, आराम से। नाउ आई एम ओपनिंग द डोर, तो ये पार्ट हो गया आर वेक्टर, ये पार्ट, करेक्ट? ध्यान से लिखना बेटा, हैंडल कभी भी दूर होता है हिंजेस से, राइट? दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू ओपन द डोर। इमेजिन स्टाइल के मारे कोई इंटीरियर डिजाइनर बोलता है सर पूरी दुनिया हैंडल इधर देती है, हम लोग सेंटर में देंगे सर, डोर अलग लगेगा। अब ये हैंडल इधर आया तो बेटा आर इतना ही हुआ ना। अब आपको ये दिखने में पहली बार अच्छा लगा, लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ पे दर्द करेगा, यहाँ पे दर्द करेगा, यहाँ पे दर्द करेगा और यहाँ पे दर्द करेगा, बिकॉज टू ओपन द सेम डोर नाउ यू विल हैव टू अप्लाई मोर फोर्स बिकॉज आर इज लेस। अप्लाई कॉमन सेंस, आर कम हो गया, अप्लाई कॉमन सेंस, आर कम हो गया, मतलब एफ बढ़ाना पड़ेगा, राइट? इससे भी इजीएस्ट वे है डोर के बिल्कुल सामने आओ हैंडल के और ऐसे फोर्स अप्लाई करो। यू नो व्हाई? अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा हूं, तो बेटा टॉर्क का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर मैंने बोला टॉर्क इज आर इंटू एफ इंटू साइन ऑफ थीटा, कैन आई से व्हेन थीटा इज 90, torque will be RF
sin 90 and it will be the maximum value. So which is the easiest way of opening the door? Come right in front of the handle and open the door. Balike. Come right in front of the door with single finger. Such a heavy door you can open. Check. ऐसा नहीं कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है. कोई भी कर सकता है. रीजन फिजिक्स इज हेल्पिंग यू. एक तो आर हाईएस्ट दे दिया कारपेंटर ने, थीटा मैंने ले लिया, ये मैंने थीटा 90 अप्लाई किया ना. दिस इज फोर्स वेक्टर एंड दिस इज आर वेक्टर. बराबर. अब सोचो बेटा, मैं इधर से इधर आया तो ये अभी एंगल 60 हुआ. मेरे लिए थोड़ा पेनफुल होगा. आप खुद ट्राई कर सकते हो, कभी भी ट्राई कर. ये मैं इधर आया, अब ये थीटा 30 हुआ. अब मैं इधर आया, थीटा 10 हुआ. वेरी डिफिकल्ट. अब मैं इधर आया, थीटा 0 हुआ ना, 0. तो साइन 0 इज 0, राइट. या आप बाहर से भी ट्राई कर सकते हो, राइट. यू डोंट नीड टू बी अ साइंस स्टूडेंट फॉर दिस. ध्यान से देखो. एम आई कवर्ड? सॉरी सर, आई एम लेट. मैं कमिंग. मैं हैंडल पे फोर्स ही अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. मैं कमिंग. सिंगल फिंगर से डोर ओपन हो. क्यों? क्योंकि आपने हाईएस्ट डिस्टेंस लिया. अब आप यही चीज यहां से करो, दर्द करेगा. इधर 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 इधर. बराबर. तो अब आपको शायद 2 फिंगर 3 फिंगर, शायद पूरा पाम का हेल्प लेना पड़ेगा. रीजन आपने आर कम किया, राइट. अब आप इधर अप्लाई करो. मैं कमिंग सर. आप ये फोर्स अप्लाई नहीं करोगे. यू मे बी अनपढ़, यू बी इलिटरेट. एक्सपीरियंस सिखाएगा आपको ये. जब आप पहली बार डोर ओपन करोगे ना, आपको पता चलेगा ये इजी है. बाद में आपको लगेगा ये टफ है, बाद में लगेगा टफ है. और ये ह्यूमन बीइंग की फितरत है. जो चीज इजीली होती है उसके लिए टफ में क्यों जाने का. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लॉजिक समझा बेटा? टॉर्क का लॉजिक समझा? थैंक यू सो मच. लॉजिक समझा? So when will you get maximum effect? When will you get maximum turning effect? When theta is 90. बराबर. आपको बेटा सिर्फ याद ये रखना है कि सीक्वेंसिंग ये है. लीनियर वेलोसिटी वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, बट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. एंड एंगुलर फोर्स, टॉर्क को एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं. फोर्स एंगुलर, which is also called torque. Which is also called torque. It is r bar cross s bar. तो ध्यान क्या रखने का बेटा, इसमें r बाद में आता है, लेकिन इसमें r पहले आता है. और आप ये सीक्वेंसिंग चेंज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? Because it is not possible. ये कहाँ पे आएगा? This I will prove in the chapter circular motion. This will be proved in rotational motion. आपको टॉर्क का फोर्स का फर्क समझा? नयन सर जो अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है, राइट. बॉडी पे जो ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है दैट इज टॉर्क, बिकॉज टॉर्क इज प्रोड्यूसिंग एंगुलर मोशन. ये बॉडी ऐसे जा रहा है, ये बॉडी, या तो ये बॉडी ऐसे जा रहा है, राइट. जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो डोर ऐसा मेरे साथ साथ में मूव नहीं होता है. ये डोर है, हाँ, मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये ऐसे मूव नहीं होता, ये ऐसे मूव होता है. आप जब बुक ओपन करते हो तो बेटा ये ऐसे जाता है, मतलब ये कौन हुआ? वेरी नाइस. समझा? सुपर श्योर. नाउ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ध्यान से सुनो बेटा, आप कैच करोगे. ओके, कैच करोगे. दिस इज लीनियर मोमेंटम. मैंने बोला था बेटा कि आप कैच करोगे. मैं इधर देख रहा हूँ और आप मतलब यू रियली वांटेड मी टू लूज, राइट? आप कैच करोगे. दिस इज लीनियर मोमेंटम. खड़े ओके, आप कैच करोगे, आप कैच करोगे. अब इसमें क्या हुआ? मास सेम रहा लेकिन वेलोसिटी बढ़ा, तो मोमेंटम बढ़ा. मास इनटू वेलोसिटी. अरे अपने पास बहुत पेपर्स है, डोंट वरी. बराबर. तो इसमें मास, आई एम योर सर. To every action there is equal and opposite reaction only in physics, not in emotional relations. बराबर.
बराबर? You have to be polite with your son. Indian culture, फॉरेन में तो मेरी सुपारी ले ले, बाहर में लॉजिक समझा बेटा? तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, राइट? एंगुलर मोमेंटम मतलब ये लीनियर मोमेंटम था ना बेटा, ये लीनियर मोमेंटम था, बराबर? अभी एंगुलर मोमेंटम क्या है, ध्यान से देखो बेटा। आ रहा है ये कैमरा में? पागल है हम लोग, फालतू में एक्सप्लेन ये आ रहा है? वेरी गुड, थोड़ा बाहर आ बेटा, उधर मैं आ रहा, मैं नहीं, यू आर अ वेरी बैड फोटोग्राफर, तो जब बोलना पड़ता है, पीछे के लोगों को पता है बाबा सर हैंडल समझा। दिस इज लीनियर मोमेंटम, बराबर? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। होमवर्क नहीं किया? हाँ? अभी क्या हुआ ध्यान से देखो, अभी क्या हुआ ध्यान से। इसका मास तो था ही, मैंने इसको यहां से पकड़ा था तो ये रेडियस वेक्टर हुआ, ये वाला, बराबर? मास भी है, वेलोसिटी भी है, रेडियस वेक्टर है, गेट अप? होमवर्क नहीं किया? अभी मुझे वेलोसिटी वही रखना है लेकिन एंगुलर मोमेंटम बढ़ाना है। क्या रे होमवर्क? क्या रे होमवर्क? सोचो कितना जोर से लगे, बराबर? ये मैंने ऐसे किया, मतलब मास ऑफ द इरेजर इज द सेम, नहीं मालूम, राइट? तो इसका प्रॉब्लम क्या है ना, अभी चश्मे भी नहीं पहने, इरेजर कहां से आएगा पानी? समझा बेटा? तो लीनियर मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी. That means this body is not held by me. I'm just throwing it. It is released. But when I'm doing this, right? तो इसमें V भी आया, R भी आया, right? अब ये distance मैंने बढ़ाया, तो मुझे और जोर से लगेगी, right? Are you getting my point? तो what is linear momentum? Mass into linear velocity. And what is angular momentum? Mass into velocity into R. अब इसका reason सुनो बेटा. इनके और इनके बीच में एंगल हमेशा 90 होता है, इनके और इनके बीच में एंगल हमेशा 90 होता है। सोचो जिधर v वेक्टर है उधर ही p वेक्टर होगा, बिकॉज p इज mv, राइट? जिधर v वेक्टर है उधर ही p वेक्टर है, और r वेक्टर उसको हमेशा परपेंडिकुलर है। व्हाट इज एंगल बिटवीन v एंड r? 90. Therefore what is angle between r and p? 90. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि when I solve L which is r bar cross p bar, तो बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? L is RP sin 90 always. Do you agree with me? बराबर? इसका मतलब ये हुआ कि L is RP एंड इसका मतलब ये हुआ कि L is R into MV. इसका मतलब ये हुआ कि L is MVR. इसका मतलब ये होता है बेटा कि लीनियर मोमेंटम इज MV, एंगुलर मोमेंटम इज MVR. अभी मुझे एक छोटी सी बात बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हुआ केमिस्ट्री में? नहीं हुआ. उसमें बोर्स सेकंड पोस्टुलेट आएगा जब एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में शुरू होगा, बहुत जल्दी शुरू होगा, राइट? उसमें सेकंड पोस्टुलेट में केमिस्ट्री के टीचर ये वर्ड यूज करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम इज. तो अभी आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? mv. And what is angular momentum? mvr. समझा बेटा? Sure. What is linear momentum? mv. What is angular momentum? mvr. Now what is linear force? F, which is ma. So what do you think should be angular force? mar. Yes or no? Linear force is what? ma. बराबर? और बेटा ये एक्सीलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा. क्यों? जिधर वेलोसिटी वेक्टर एक्ट करता है उधर ही एक्सीलरेशन वेक्टर भी एक्ट करता है, राइट? तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, राइट? तो टॉर्क कैसे लिखोगे बताओ? RF sin थीटा, राइट? अगर थीटा 90 हुआ, मैं हैंडल के बिल्कुल सामने आ रहा था, तो मेरा एफर्ट्स एकदम कम हो गया कि नहीं? अगर मैं हैंडल के सामने आया, फिर मैं एंगल पे गया, आगे गया, एकदम आगे गया,
मेरा जॉब डिफिकल्ट होगा, लॉजिक समझा? श्योर. सो फाइनली व्हाट इज लीनियर मॉम? MV. And what is angular mom? MVR. What is linear mom? MV. मैग्नीट्यूड में ये MV होगा ना? What is linear mom? MV. And what is angular mom? MVR. समझा सबको? सीक्वेंस याद रहेगा. What is relation? What is vector relation between linear velocity and angular velocity? V vector is omega vector cross R vector. Who is omega vector? Angular velocity. What is the relation between linear momentum and angular momentum? L vector is R vector cross P vector. And what is the relation between linear force and angular force? Torque vector is R vector cross F vector. क्या याद रखने का बेटा? इसमें R बाद में आ रहा है, राइट? लेकिन इसमें R पहले आ रहा है. उसका भी रीजन है. इसमें आप लीनियर लेफ्ट साइड पे ले रहे हो, लेकिन आप इधर लीनियर राइट साइड पे ले रहे हो, इधर एंगुलर ले रहे हो. लीनियर एंगुलर एंगुलर, एंगुलर लीनियर लीनियर, इसलिए ये सीक्वेंसिंग चेंज होती है. समझा आपको? सुपर श्योर. इसके ऊपर वेक्टर में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. मैंने 5 क्वेश्चंस होल्ड पे रखे हैं. इफ यू कैन हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. व्हिच क्वेश्चंस वर ऑन होल्ड? 26. मुझे लगता है 10th, मैं असाइनमेंट 4 की बात कर रहा हूँ. 10th, 18th, 20, 21, 26, 28. बेटा ये जो 5 क्वेश्चन है ना, 99.9%, एक आध क्वेश्चन इधर उधर ठीक है, लेकिन इस पे हो. आर यू गेटिंग दिस? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका प्रूफ नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाला है. But then because of that we cannot keep this question on hold. Logic समझा? What is V bar? Omega bar cross R bar. What is L bar? R bar cross T bar. What is torque bar? R bar cross F bar. Sequencing याद रहेगा. Super sure. अब आप आ जाओ hand written notes. पॉज कर सकते हैं? 1 मिनट. स्टॉप मत करना. स्टॉप करेगी बेटा पूरा वापस रिकॉर्ड करना. पॉज. I want every one of you to be on handwritten notes, page number 12. Page number 12. ध्यान से देखो बेटा, पूरा पेज नंबर 12 और 13 क्रॉस प्रोडक्ट पे था. पूरा पेज नंबर 12 और ना सिर्फ 12 क्रॉस प्रोडक्ट पे था. लेफ्ट साइड पूरा हो गया अपना, राइट? लेफ्ट साइड बॉटम आपको ये एग्जांपल सुधर नहीं है क्या? V वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. अगर आपको कहीं पे दिख रहा है तो प्लीज फाइंड इट फॉर मी. एग्जांपल्स दिख रहे हैं? टर्न द पेज. Yes, very beautifully given. Very beautifully given. Are you on page number 16? अभी जो आर्टिकल पढ़ रहे हो आप राइट साइड बॉटम, उसको 20 स्टार मार्क करो. ट्रस्ट मी, 20 स्टार. और लिखो will appear in the chapters motion in a plane. सर्कुलर मोशन उसका सब पार्ट है. मैं मेन चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ. मोशन इन अ प्लेन मतलब मोशन इन 2 डायमेंशन. वेट फॉर मोशन इन अ प्लेन. द सब आर्टिकल इज सर्कुलर मोशन. राइट? 20 स्टार मार्क किया बेटा, राइट? उधर आपको 3 रिलेशंस दिख रहे हैं. V वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर. टॉर्क वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. एंड L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं उधर. आपको पेज नंबर 16 पे राइट साइड बॉटम पे 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं. तीनों को हाईलाइट करो प्लीज. तीनों को हाईलाइट करो. सीक्वेंसिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. सीक्वेंस यही होनी चाहिए. ठीक है? हाईलाइट करो प्लीज. अच्छा अभी आप सिर्फ डायग्राम देखो. डायग्राम समझा आपको? उधर जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करके दिया वो डायग्राम समझा आपको? द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कल. इट इज गोइंग फ्रॉम, डायग्राम देखते जाओ. द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम A to P. So radius vector is R vector. That means that R vector is going from one location to the other location. बीच में जो एंगल कवर हुआ है
उधर लिखा है डेल्टा थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, डेल्टा थीटा का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंगल। थीटा का मतलब होता है एंगल, डेल्टा थीटा का मतलब होता है वेरी स्मॉल एंगल, बराबर। अभी ध्यान से देखो बेटा, ओमेगा वेक्टर कौन से लाइन पे है, टेंजेंट पे है कि एक्सिस पे है? एक्सिस पे, तो उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। कौन कौन एक्सिस पे होगा, सोच के बताओ बेटा। सारे एंगुलर चीजें, सारी एंगुलर चीजें एक्सिस पे होंगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। याद है अपने दो डेफिनेशंस बाकी थे, एक एक्सियल वेक्टर बाकी था और एक पोलार वेक्टर बाकी था। जब आप अपना आंसर एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हो तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और जब आप अपना आंसर आर थीटा के टर्म्स में लिखते हो उसको बोलते हैं पोलार कोऑर्डिनेट। दैट्स व्हाई आर इज नाउ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पोलार वेक्टर्स। वापिस बोलता हूँ, जब आप अपना आंसर लिखते हो एक्स वाई के टर्म्स में उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। याद करो, हम लोगों ने आर वेक्टर लिखा था एक्स टाइम्स आई प्लस वाई टाइम्स जी, लेकिन वही आर वेक्टर हम लोगों ने लिखा था आर कॉस थीटा टाइम्स आई प्लस आर साइन थीटा टाइम्स जी। याद आया था? हम लोगों ने वेक्टर को दो पार्ट में स्प्लिट किया था, राइट। वन स्मॉल सजेशन टू ऑल ऑफ यू, पेज नंबर 16 बेटा सिर्फ ये टेबल कॉपी करो, सिर्फ ये टेबल, बिकॉज ये तीनों मैंने दिए हैं, ये डायग्राम मैंने दिया है, ये खाली उसका मैंने टॉप व्यू करके बताया, तो इसमें कुछ नया नहीं है। दो चीजें कॉपी करो, ध्यान से सुनो, एक ये कॉपी करो और एक ये कॉपी करो। एंड इफ यू वांट, राइट, ये पार्ट का मैं प्रिंट आउट निकाल के दे देता हूँ आप लोगों को, तो क्या ना थोड़ा सिस्टमेटिक होगा आपके पास। ये पर्टिकुलर बोर्ड वर्क का मैं प्रिंट आउट दे दूंगा आपको, ठीक है। आप लोग टेम्पररीली खाली ये पार्ट ऐड करो उसमें। ये राइट द सिंबल्स वेरी केयरफुली। इसको बेटा W मत लिखना प्लीज, दिस इज ओमेगा। अच्छा, टॉर्क कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनो, टॉर्क कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनो, 1 2 3, या तो फिर 1 2। ये मैंने पास्ट में बोला था, टेस्ला कार का सिंबल ऐसा है, ये देखो। Because Mr. Elon Musk is a brilliant engineer, he is a crazy fan of physics, so he is in love with all physics related alphabets things. उनकी कंपनी का नाम SpaceX, बच्चों का नाम डेल्टा, जब ट्विटर खरीदा होगा सॉरी, एक बच्चे का नाम डेल्टा है। हाँ, yes. He is a brilliant engineer, real brilliant engineer, absolutely workaholic. He's a big business tycoon, not because of influence or something. He made himself influence. कभी कभी वो अपनी फैक्ट्री में 16 घंटा 14 घंटा रहते हैं, कभी कभी घर पे ही नहीं जाएंगे, पता नहीं उधर ही जाना है, उधर ही सो जाएंगे। वेरी हार्ड वर्किंग। ये पार्ट हो गया बेटा। अब आप लोग पेज नंबर 16 राइट साइड खत्म करो, रीडिंग वाइज खत्म करो। ये भी ऐड करना था, सिर्फ इतना पार्ट। ये वैसे मैंने सर्कुलर मोशन में दिया है, बट फिर भी ऐड कर लो। लीनियर मोशन डज नॉट मीन पार्टिकल इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली। लीनियर मोशन also means it can go along a curve also. One point to other point straight line, rectilinear. One point to the same other point along a curve, curvilinear. Together it is known as linear motion. इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? 100% करेंगे बेटा, अरे 100 अभी लिखूंगा मैं। खाली जिधर जिधर लीनियर है ना, v = u + at है ना, तो v की जगह पे ओमेगा डाल दे, u की जगह पे ओमेगा नॉट डाल दे, a की जगह पे अल्फा डाल दे, बाद में s is ut + ½ at², राइट। इनफैक्ट एक सिंपल चीज लिखता हूँ, हाँ एकदम ध्यान से सुनो बेटा, तुझे पूरा काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, मस्त नोट लिखता हूँ इधर। ये नोट आप ऐड कर सकते हो, ये नोट आप ऐड कर सकते हो। इन काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो कि ऑलरेडी मैंने आपको लिख के दिया है, तीनों के तीनों याद है ना। इफ वी रिप्लेस s by theta, v by omega, u by omega 0, a by alpha,
then they are kinematical equations for rotating body. Kinematical equations for rotating body. या तो body performing angular motion, body performing angular motion. अच्छा हुआ तूने मुझे पूछा. ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरे पास तीन इक्वेशंस थे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस. हाँ ध्यान से सुनो, इधर देखो. V is U plus AT, S is UT plus half AT square. V square is U square plus 2AS. We are grown up babies, so we must write this in vector form, right? So V vector, U vector, A vector, S vector, U vector, A vector, A vector, S vector dot. मुझे सेम इक्वेशंस एंगुलर मोशन में लिखना है. बस ये रूल फॉलो करो, ये रूल फॉलो करो. जिधर जिधर V, उधर उधर ओमेगा. ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. वेक्टर 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 डॉट. अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो. तो आप एंगल को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके लिए सर्कुलर मोशन के लिए वेट करना पड़ेगा. ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही. ना बेटा ना. अगर ये थीटा है ना तो थीटा वेक्टर इधर है. दो की मारामारी में तीसरा आंसर. तेरा रेडियस वेक्टर इधर से इधर जा रहा है तो तेरा आंसर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर किधर भी नहीं है. या तो इधर है या तो इधर. राइट हैंड थंब रूल. जबरदस्त कॉन्सेप्ट. मतलब स्कूल में तो तुम लोगों ने कुछ फिजिक्स किया ही नहीं है, ऐसा समझ लो. वेरी ब्यूटीफुल. अगर आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिख रहे हो तो मैं वेट कर रहा हूँ. बेटा 1 मिनट वीडियो पॉज करो प्लीज. Are you done with this? I will send this printout right just now. When you're copying one sum now, meanwhile I'll just send it for printing. Take it now only. And without fail, keep this with your handwritten notes. My staff will also give you today one back-to-back page, right? Which also you will need. शुरू करें. So even the printout of the books, right? Sorry. The books. The books. वो तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बेटा. वो चैप्टर का मैं प्रिंट आउट दे रहा हूँ. देयर आर 11 पेजेस. ओके. और ये आप और एक लेक्चर के लिए रुक सकते हो. या तो एक काम करो, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो. अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आया तो फ्राइडे के लेक्चर के बाद आपको वो भी आ जाएगा. नो प्रॉब्लम. ओके. बट यू कैन गेट स्टार्टेड विद एक्सटर्नल बुक्स नाउ बिकॉज वी आर डन विद असाइनमेंट 1 2 3 4. वी आर डन विद प्रैक्टिस पेपर 1 2 3 4 5 6. बुक वाइज वी आर लेफ्ट ओनली विद वन असाइनमेंट, दैट इज हॉट्स असाइनमेंट 5. चलो, आर यू ऑल विथ मी? असाइनमेंट 4 मुझे लाइन से बोलते जाओ बेटा. कौन से क्वेश्चंस बाकी है लाइन से बोलते जाओ. 1 मिनट. 1 to 5 डन. 6 डन. 6 डन. 7th डन. 7th शायद मैंने किया था बोर्ड पे और 8th आपने किया था. Am I right? 9th one was it done? 5th में मैंने बोला था solve 9. 10th one ध्यान से देखो बेटा. 10th one ध्यान से देखो. लीनियर मोमेंटम P दिया है, पोजीशन वेक्टर R दिया है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है. बराबर. मुझे लग रहा है तब तक आप ये खुद कर सकते हो. मुझे लग रहा है तब तक ये पेज में प्रिंटिंग में भेजता हूं. हाँ एकदम ध्यान से सुनो. P वेक्टर इज 2i plus 4j plus 5k. P वेक्टर इज 2i plus 4j plus 5k. एंड R वेक्टर इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर या तो रेडियस वेक्टर. राइट. मैंने बोला वैसे उन्होंने क्लियरली सिंबल दे दिया है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है. 3i minus j plus 2k. 3i minus j को मैं -1j लिख सकता हूँ plus 2k. एंगुलर मोमेंटम पूछा है. L वेक्टर इज व्हाट. फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला? L वेक्टर इज R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. बराबर. इसका मतलब मैं R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर ढूंढूंगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट. रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ प्लीज. सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? IJK. ना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. पहले मैं R लिखूंगा कि P लिखूंगा? उन्होंने जानबूझ के आपको P दिया है. पहले जानबूझ के P दिया है सीक्वेंसिंग में ताकि आप गलती करो.
R vector is 3, -1, 2, 2, 4, 5, plus, minus, plus. I think you can do this now. अब इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि आप ऑप्शंस देखोगे ना तो उसमें 3, 19 एंड 14 दो में है, 3 में है इनफैक्ट, और खाली चौथे में 13, -11 और 14 है. वो ही right. सॉरी, वो ही right है. लास्ट वाला राइट है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. गिव मी अ मिनट प्लीज. क्या आंसर आया बेटा? बॉम्बे आया सबको? दिल्ली, दिल्ली, सॉरी सॉरी सॉरी, दिल्ली, दिल्ली आया सबको कि हेल्प करो? श्योर. चलो, टर्न द पेज. let us try to finish this assignment today. Are you all on question number 11? Are you all on question number 11? Very good, very good. We've done 11? We've done 11. 11th का answer is Bombay. 12th, the vector product of two non-zero vectors is 0. Here you are. Vector product of two non-zero vectors is 0 when they are parallel or anti-parallel. So your answer should be Delhi. Your answer should be Delhi. 13 किया कि नहीं किया? 13 किया कि नहीं किया? क्या आंसर आया? 30 डिग्री. वेरी गुड. 30 डिग्री. एनी हेल्प, एनीबडी, एनीवेयर? डोंट हेजिटेट प्लीज. 13 नहीं आया. डोंट हेजिटेट बेटा, मेरे लिए आधे मिनट का काम है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13, assignment number 4. It says, if the ratio of dot product of two vectors and cross product of the same two vectors is √3. पहले कौन सा वर्ड है? डॉट. राइट? इसका मतलब बेटा a बार डॉट b बार एंड a बार क्रॉस b बार, राइट, इज इक्वल टू √3. अभी सोचो ये रॉन्ग है क्योंकि इधर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए. अभी कॉमन सेंस अप्लाई कर बेटा. न्यूमरेटर इज ab cos theta and denominator is AB sin theta. This should be √3. AB gaya. That means cos theta upon sin theta is √3. So what is sin theta upon cos theta? 1 upon √3. And that is tan theta. If tan theta is 1 upon √3, what is theta? Tan inverse of 1 upon √3. और वो एंगल कौन सा होना चाहिए? 30 डिग्री या तो π/6 रेडियन. π/6 रेडियन. जिनको नहीं आया था 13th क्वेश्चन आंसर इज दिस. अभी सोचो ये क्वेश्चन घुमाना मेरे लिए कितना इजी है. मैंने खाली डॉट और क्रॉस वर्ड इंटरचेंज कर दिए. मैंने सिर्फ डॉट और क्रॉस वर्ड इंटरचेंज कर दिए. मेरा आंसर 60 आया. और या तो ये पूरे क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, √3 को 1/√3 कर दिया, तो भी मेरा आंसर 60 आया. तो सोचो एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन घुमाना कितना सिंपल है. आप ये कॉपी करो, बाद में ये कमेंट लिखवाता हूँ. पहले आप ये कॉपी करो जिनको नहीं आया था. एज पर द क्वेश्चन द आंसर शुड बी ए, बराबर. और हमेशा आदत डालो डिग्री रेडियन दोनों में आंसर लिखने का. रीजन ऑप्शन में वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं. 30 डिग्री इज π/6 रेडियन, 45 डिग्री इज π/4 रेडियन, 60 डिग्री इज π/3 रेडियन, 90 डिग्री इज π/2 रेडियन. ये हो जाने के बाद बेटा राइट साइड पे एक नोट लिखो. इन द क्वेश्चन
Either the words dot and cross are interchanged. Either the words dot and cross are interchanged, or root 3 is made 1 upon root 3, or root 3 is made 1 upon root 3. Then the answer will be 60 degree. Then the answer will be 60 degree. रुपेश, एक पीडीएफ फाइल भेजा फटाफट, ये बच्चों के लिए प्रिंट आउट बिफोर दे गो, फटाफट. तो बेटा 13 डिग्री का आंसर आया 30. अभी 14 का आंसर आया क्या आपको? पहले पी बार प्लस क्यू बार लेने का, बाद में पी बार माइनस क्यू बार लेने का, बाद में डॉट करके बताओ. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Question number 14. Vector P is I plus 2j minus 4k. Vector P is I plus 2j minus 4k. Vector Q is I plus 2j minus k. Vector Q is I plus 2j minus k. Correct me if I am wrong somewhere. दोनों वेक्टर बराबर लिखा, I plus 2j minus 4k. Okay. P plus Q, P minus Q. पहले मैं P plus Q लूंगा, डायरेक्ट ऐड करूं, चलेगा स्टूडेंट्स? P plus Q 2i plus 4j minus 5k बराबर. बाद में इसका सब्ट्रैक्शन, वेक्टर P minus वेक्टर Q. Is it I minus I? 0. So 0 I, 2i minus 2i, 0j, right? Minus 4k minus k, minus 3k. Yes or no? अभी बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट, पी बार प्लस क्यू बार डॉट पी बार माइनस क्यू बार. याद करो, इज इट 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 3. दैट मीन्स योर आंसर इज प्लस 15. समझा? पी और क्यू दिया था, उन्होंने P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का डॉट प्रोडक्ट पूछा था, तो मैंने एक नया वेक्टर ढूंढा P प्लस क्यू और एक नया वेक्टर ढूंढा P माइनस क्यू, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया. समझा बेटा? आपका आंसर 50. कितने लोगों को ये आया था? वेरी गुड. ठीक. किसको नहीं आया बेटा? Sir, I accidentally did a cross product. I did not read the question. You have to be very careful. I told you, one small mistake, in place of plus 4 you get minus 1. You have to be very alert. ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बेस्ट स्टाइल क्या है मालूम है? ये आपको नॉलेज तो देता ही है, प्लस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देता है. इट गिव्स यू एक्यूरेसी, इतना भी मिस्टेक नहीं करता. अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिखते हो और ऐसे में सपोज किसी ने 1.5 पेज भर के लिखा, किसी ने 1 पेज भर के लिखा, किसी ने 4 पेज भर के लिखा, तो एग्जाम में उतना ध्यान से नहीं पड़ता है बॉस आपका. ऐसे 4 पेज तक वो पढ़ते नहीं था. हाँ बच्चों ने 4 पेज लिखे, 4 मार्क्स. 2 ही लिखा, ठीक 3 मार्क्स. एक ही पेज लिखा, 2 मार्क्स. पढ़ते नहीं हो. इधर आपका टैलेंट भी चेक होता है, आपका एक्यूरेसी चेक होता है, और आपका स्पीड कंट्रोल चेक होता है. सॉरी, नहीं कर सकते. आ रहा है वो बात अलग है, डॉट प्रोडक्ट से, बिकॉज़ डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, राइट? बट मेथड वाइज रॉन्ग है. प्रूव करूंगा. एक वेक्टर रोटेट होता है तो उसका आंसर क्या होता है, उसमें यू विल चेक कि आई विल नॉट टेक b² - b². आंसर अलग आता है क्योंकि उसमें कॉस का फैक्टर आता है. समझा बेटा? 14th का आंसर समझा आपको? 15th, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ, मतलब ये जो वेक्टर है पहले आपको उसका नेगेटिव लेना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर ढूंढना है. व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ये वेक्टर क्या है? -i + j - k. इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा? +i - j + k. और ऐसा कोई भी ijk है, चाहे वो +i + j + k या तो जो भी है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा √3 आएगा. सोचो बराबर. तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? ये वेक्टर का नेगेटिव लेने का पहले, ये वेक्टर का नेगेटिव क्या हुआ? i - j + k. उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ? √3. तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो बेटा 15th का आंसर आपका ए आया क्या? 15th का आंसर ए आया कि हेल्प करूं? आया बेटा सबको? श्योर. चलो 16th.
The resultant of two vectors will be minimum if they are perpendicular to each other. Correct. The resultant of two vectors will be minimum if they are perpendicular. Actually anti-parallel. Yeah, anti-parallel. Very good. Options में नहीं दिया. याद, हाँ, वेरी गुड. मैंने बोला था ये कि जब वो लोग ऑप्शन में नहीं देते, you to select the nearest one. Very good. तो एंटी पैरेलल के बाद नेक्स्ट बेस्ट कौन है? तो इधर एक कमेंट लिखो. Actually anti-parallel, but since not mentioned. Therefore the next best is perpendicular. Very good बेटा, very good. याद करो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि a hall is having dimensions 10 by 14 by 20. ऐसा पूछता था 10 by 12 by 14. या तो an insect is flying. उसका अपना आंसर आ रहा था रूट ऑफ 440. आंसर आना चाहिए था 21. लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया था करके हमने 20 सिलेक्ट किया था. वेरी गुड. द एक्चुअल आंसर शुड हैव बीन एंटी पैरेलल बट सिंस नॉट मेंशन्ड द नेक्स्ट बेस्ट इज परपेंडिकुलर. 17 मुझे क्यों याद है हो गया था? हाँ किया था. राइट. अभी ध्यान से सुनो बेटा. 18th में पहले एफ दिया है बाद में आर दिया है और आपको ढूंढना है टॉर्क. क्या करोगे? आर बार क्रॉस एफ बार. मैं नहीं कर रहा हूँ ये. कम ऑन, प्राउड ऑफ यू. एक मिनट. जिनका बाय चांस सब कुछ हो गया ना बेटा, स्टार्ट डूइंग हॉट्स. जितना भी आता है वो भी हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी मैं बेटा लिटरेचर दे रहा हूँ, उसमें कम से कम 150 क्वेश्चन रहेंगे बाहर के बुक का, तो प्रैक्टिस हो जाएगा ना बेटा. अभी मैं एक्स्ट्रा मटेरियल जो दूंगा आपको 11 पेजेस है, एकदम लास्ट में की प्रिंट हुआ है, एकदम खाली की प्रिंट हुआ है. दैट इज यू कैन क्रॉस चेक. और बाद में मैं उसका सोल्यूशन नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा, तो यू कैन क्रॉस चेक कि आपका आंसर रॉन्ग क्यों गया. आई एम वेटिंग फॉर यू. 18th का आंसर क्या है? ग्रुप में बेटा मैं अवॉइड करता हूँ. सम पेरेंट्स डोंट लाइक इट. वो बोलते हैं मेरा बच्चा बाद में मोबाइल फोन यूज करता है. इफ यू वांट आई कैन, आई डोंट माइंड. आपका ग्रुप पे मैं पीडीएफ डाल सकता हूँ आंसर्स क्रॉस चेक करके. ठीक है, मैं ऐसे लिखूंगा टू क्रॉस चेक योर आंसर्स. ठीक, डन. क्या आंसर आया 18th का? वेरी गुड. 19th रिपीट 4th था. 19th रिपीट 4th था. 20 ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो. A vector points vertically upwards. बताओ vertically upwards का मतलब क्या? Proud of you. Very nice, very nice. तो बेटा ये प्लस के हुआ because this is along z axis. बराबर. ये एक वेक्टर हुआ. वेक्टर B is along north. What is the meaning of north? North. Plus y axis. Very good. So plus j. Very good. Perfect. अब उनको आपको ये देखना है कि ए बार क्रॉस बी बार पूछा है कि बी बार क्रॉस ए बार. वेरी इंपॉर्टेंट. ए बार क्रॉस बी बार का मतलब क्या हुआ? एक मिनट. ए बार क्रॉस बी बार का मतलब क्या हुआ? के बार क्रॉस जे बार. मतलब आपका आंसर माइनस आई बार हुआ. मतलब आपका आंसर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ. बराबर. अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब अलोंग वेस्ट. बहुत अच्छा क्वेश्चन. समझा कि वापस बोलूं? समझा? इसके लिए आपका हैंड रिटन पेजेस वो डायरेक्शन वाला स्ट्रांग होना चाहिए. मतलब हैंड रिटन पेजेस में तो सब कुछ स्ट्रांग होना चाहिए. आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए. डायरेक्शन वाला पेज था पेज 7. पेज 7 राइट साइड बॉटम चेक करो. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का मतलब क्या होता है? अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20 और आंसर शुड बी बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क दे दूं क्या? अभी हिंट लिख के रखो खाली. ये 1 मिनट लगेगा, घर पे कर लो. 4-5 लाइन छोड़ दो. आंसर आएगा दिल्ली. आंसर आएगा दिल्ली. मैंने बोला वैसे इसमें सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बस सीक्वेंसिंग ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 21 आपका आंसर आएगा दिल्ली. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. ओके, अब ध्यान से सुनो बेटा. एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे. हाँ, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 22 मैं सॉल्व कर रहा हूँ. आप 22 में लिखो. आप 22 में लिखो सॉल्व 25 एंड 27. आप 22 में लिखो सॉल्व 25 एंड 27. 22. डोंट स्टार्ट विथ मी प्लीज. व्हाट इज द एंगल बिटवीन i plus j and j plus k? ध्यान से सुनो. मैंने हमेशा से बोला था 3 डायमेंशन की आदत डालो. राइट?
First vector is I plus j. Can I write this as 1i plus 1j plus 0k? आपका second vector है j plus k. So is it 1j plus 1k, therefore 0i? What is the best technique to find out angle between two vectors? Dot product. Proud of you. Very good. Dot product. Fantastic. Fantastic. Cos theta का formula बोलो बेटा. Cos theta is ax into bx. Stop writing please. Because आप लोग दो क्वेश्चंस खुद से करने वाले हो 25 and 27. So just try to understand this. ax bx plus ay by plus az bz upon ab. तो मैं काम करता हूँ ना, a और b का आंसर इधर ही ढूंढ लेता हूँ. पूरा लंबा चौड़ा नीचे रूट कौन दिखेगा? a का आंसर क्या आएगा बेटा? a का रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. इज इट रूट 2? और b का आंसर क्या आएगा? Is it root of 0 square plus 1 square plus 1 square? That is also root 2. बराबर. अच्छा न्यूमरेटर. Something into something plus something into something plus something into something upon root 2 into root 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks. 1 1 0 1 1 0. Fill in the blanks. 0 1 1 0 1 1. तो इधर ये 0 हुआ, इधर ये 0 हुआ. That means your numerator is 1 and your denominator is 2. Right? That means cos theta is half. And therefore theta is 60 degree या तो pi by 3 radian. I hope I am not fast. 22 आप कॉपी करोगे, 25 और 27 अब भी करोगे. उसमें भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा है. और अगर आपका आंसर आ गया तो मुझे आंसर बताओ. नहीं आया तो 2 मिनट का टाइम लो, नो प्रॉब्लम. लेकिन आज सब खत्म करके जाओ. 25 का आंसर 25 का आंसर 45 डिग्री है और 27 का 90 डिग्री है. दोनों गलत है. 25 का आंसर तेरा दोनों गलत है. 25 का आंसर सी आ रहा है और 27 का आंसर दिल्ली आ रहा है. 25 का बेटा सी आ रहा है और 27 का दिल्ली आ रहा है. जिनको नहीं आया बेटा 2 मिनट का टाइम लो, नो प्रॉब्लम, बट सॉल्व करो. ये मेथड है. ट्वेंटी 27 दोनों में हिंट लिख के रखो, चाहिए तो घर पे जाके करना. सेम एज 22. सेम एज 22. आर यू डन विद 22 बाय द वे? नेक्स्ट पूरा डीसीटी बेटा सिर्फ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पे है. नेक्स्ट डीसीटी मतलब आप असाइनमेंट 3 प्रिपेयर करोगे, असाइनमेंट 4 प्रिपेयर करोगे एंड प्रैक्टिस पेपर 4 5 6 प्रिपेयर करोगे. मतलब आपका 60% रिवीजन तो हो गया. संडे एग्जाम में सब कुछ है. संडे एग्जाम में एवरीथिंग. चल 23 anything into null vector is a null vector. The answer should be C. Now why you have to be careful. एक ऑप्शन 0 है और एक ऑप्शन 0 वेक्टर है. क्वेश्चन नंबर 23 में एक ऑप्शन 0 है और एक ऑप्शन 0 वेक्टर है. 0 आएगा कि 0 वेक्टर? बिकॉज मॉड नहीं है. राइट? दिल्ली के ब्रैकेट में लिखो, दिल्ली के ब्रैकेट में लिखो इफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस 0 बार. दिल्ली के ब्रैकेट में लिखो इफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस 0 बार. चलो बेटा नेक्स्ट वन. Question number 24. With respect to rectangular Cartesian coordinate system, there are 3 vectors A, B, and C. Then what is unit vector R along the direction of some of these 3 vectors? पहले तो ये तीनों vectors add करो. क्या आया बेटा? Can you please tell me the final answer if you add these 3 vectors? Question number 24 में can you please tell me, मैं लिख नहीं रहा हूँ सब कुछ, मुझे सिर्फ A plus B plus C बताओ प्लीज. कितना आ रहा है? I
माइनस के बराबर, इसको उन्होंने रिजल्टेंट बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, करेक्ट। व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, सो इज इट I plus j minus k upon root of 1 square plus 1 square plus minus 1 square, so is it I plus j minus k upon root of 3? तो आपका आंसर हो गया ए। खाली ए और डी में कंपटीशन था, बी और सी तो वैसे भी नहीं था क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स गलत थे। बी और सी तो वैसे भी नहीं था। सर अगर वेक्टर ऐड करके एक ऑप्शन नहीं है। हाँ, वेक्टर ऐड करते वक्त मुझे i प्लस जे माइनस के एक ही में दिख रहा है, चारों ऑप्शंस में नहीं, 3 में दिख रहा है ना बेटा। हाँ हाँ, बाद में रूट 3 एक ही में चलेगा, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिर्फ 26 होल्ड पे रखो, ओनली 26। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूरा एक डायग्राम एक्सप्लेन करना है और वो एक डायग्राम में मैं 7 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, 7। तो 26 को बेटा 5 स्टार मार्क करो, 26 को 5 स्टार मार्क करो, खोपड़ी क्यूब मार्क करो, 26 को 5 स्टार मार्क करो, खोपड़ी क्यूब मार्क करो, और मुझे याद करवाना इट इज ऑन होल्ड। तो इधर मैं होल्ड में से 26 को अभी भी होल्ड पे रख रहा हूँ, 26 को मैं अभी भी होल्ड पे रख रहा हूँ। आर वी ऑन 27? आर वी ऑन 27? व्हाट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? मैंने बोला वैसे 90 डिग्री आएगा। 28 ताजी करवाया, कम ऑन बेटा, यस। 29 पूछने का स्टाइल अच्छा है, 29 पूछने का स्टाइल अच्छा है। इधर देखो क्या दिया है, ए बार क्रॉस बी बार का मॉड इज मैचिंग विथ ए बार डॉट बी बार, बराबर। नाउ व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार का मॉड? फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, एंड व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? ए बी कॉस थीटा। ए बी गया, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 1, दैट मींस tan थीटा इज 1, therefore थीटा इज 45 डिग्री। So I feel like the sin theta is equal to cos theta is present only in one according to the sin. चलेगा, बिकॉज बोथ आर 1/2 चलेगा। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, सुनो। इधर बेटा लोग माइनस साइन डाल सकते हैं, तो ये आंसर आएगा 135। कोई भी एक जगह पे √3 डाल सकते हैं, मान लो इधर √3 डाला, इधर तो sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी 1 अपॉन √3, तो आपका आंसर 30 डिग्री आ सकता है। इधर √3 डाल सकते हैं, या तो इधर √3 डाल सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं डालेंगे, बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल है, बराबर। आप लोगों के लिए छोड़ दूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया? आंसर बॉम्बे, आंसर बॉम्बे, सॉरी 4th असाइनमेंट का 30 का आंसर बॉम्बे, बराबर। लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द डे। नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस पेपर 4, 5, 6 में जो भी डाउट है, जो भी, प्लीज मुझे पूछ लेना, बिकॉज टुडे आई एम गिविंग यू न्यू लिटरेचर। सर आप एक असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन 15 श्योर। देखो 31 की बात कर रहा था मैं, एक काम करो आप 29 में लिखो, 29 में सॉल्व 31। ध्यान से देखो बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पेज। 31 5 स्टार मार्क करो, 31 5 स्टार मार्क करो। उन्होंने बोला ए बार क्रॉस बी बार इज मैचिंग विद रूट ऑफ ए बार, तो रूट ऑफ 3 टाइम्स ए बार डॉट बी बार। डोंट स्टार्ट विथ मी, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड इज मैचिंग विद रूट ऑफ 3 टाइम्स ए बार डॉट बी बार। डोंट स्टार्ट विथ मी प्लीज, यू नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। प्लस डॉट और क्रॉस तीनों लिया है साथ में। लास्ट आंसर प्लस पूछा, देखो अब ध्यान से सुनो। Therefore ए बी sin theta should match with √3 times ए बी cos theta। ए बी गया, that means sin theta upon cos theta is √3, therefore tan theta is √3, therefore theta is 60 डिग्री। याद रख, समझा बेटा?
Now what is a bar plus b bar का mod? Is it root of a square plus b square plus 2ab cos of theta, which is root of a square plus b square plus 2ab cos of 60 degree. 2 और cos 60 गया because cos 60 is half. So is it root of a square plus b square plus ab, and therefore is it a square plus b square plus ab raised to half. अब सोचो इसमें लोग क्या वेरिएशन कर सकते हैं. खाली बेटा ये रूट 3 उठा के इधर डाल दिया तो ये 30 डिग्री हुआ, ये 2 हुआ और ये रूट 3/2 हुआ, तो इसके आगे रूट 3 आएगा, इसके आगे रूट 3 आएगा. ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ओह माय गॉड, खतरनाक ना. आपका आंसर आया दिल्ली. आपका आंसर आया दिल्ली. सी के ब्रैकेट में लिख के रखो, सी के ब्रैकेट में लिख के रखो. इफ रूट 3 was made 1/√3, खाली इतना लिखो. इफ रूट 3 was made 1/√3, तो आपका आंसर आता सी. ए बार डॉट बी बार में जब मॉड नहीं देते ना बेटा, तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज एंगल 0. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. दिस इज ऑफ द टाइप component of one vector on the other. Component of A on B पूछा है. जमेगा की हेल्प करूं? हेल्प इतना जोर से चिल्ला जैसे ऐसा इसका अलार्म बज रहा है. इमरजेंसी आपका चल रही है. 31 हो गया. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. 32. Last question of the day, 32. Who is the first vector? AXI plus AYJ plus AZK. 32. Vector A is AXI plus AYJ plus AZK. आप IJ के पहले लिखो कि बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है. Vector into scalar is a vector. Second vector is I minus J. अब ध्यान से सुनो बेटा, second vector में कैसे लिख रहा हूँ? I माइनस जे, तो इसको मैं लिख रहा हूं 1i माइनस 1j प्लस 0k. अभी लैंग्वेज क्या बोलता है? व्हाट इज कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन द सेकंड वेक्टर. लैंग्वेज के हिसाब से ये लोगों ने क्या पूछा है? व्हाट इज कॉम्पोनेंट ऑफ ए ऑन बी. चलो याद करो. ऑफ मतलब एज इट इज, ऑन के ऊपर कैप. ऑफ मतलब as it is, on के ऊपर कैप. याद आया? So is it a bar dot b vector upon b scalar? So is it a bar dot b bar upon b? So is it something into something plus something into something plus something into something upon root of something square plus something square plus something square? Fill in the blanks. पहले वेक्टर A, AX, AY, AZ. बाद में वेक्टर B 1 minus 1 0, 1 minus 1 0. इधर भी 1 minus 1 0. तो आपका न्यूमरेटर हो गया AX minus AY और आपका डिनोमिनेटर हो गया √2. तो आपका आंसर हो गया डेल. समझा? So I think assignment 4 except question 26 is over. Please give me rough idea. Practice में 5 और 6 में कितना डाउट्स आया? शायद वो भी हो जाए क्योंकि वो टॉर्क रिलेटेड था, तो शायद वो भी हो जाएगा. राइट? We stop here for the day. My staff is giving you one literature which is of 11 pages. The name of the book is Marvel. Marvel. Start solving it. And another literature, ये बोर्ड वर्क का पिक्चर. Okay? और एक पेज है वो मैं नेक्स्ट टाइम. We stop here for the day. Recording stops.